Okay, so today's topic is understanding balance sheets. Let's start with a small example. Okay, so this is Mr. A. Mr. A has started a business. He has started a company, electronic vehicle manufacturing. So he wants to manufacture electric bikes. So everything is all right. He is an entrepreneur and he has a company, and this company is managed by various managers which he has appointed. There is also accounting manager, and the accounting manager, suppose the chartered financial analyst, he's been appointed as a finance manager. So he has the task of seeing the finances as well as the actual position of the company, and the profitability of the company. Okay, so now the company started on Jan 1st and December 31st has come. This is the day when companies statements would be prepared. I mean, say financial statements. So financial statement is again divided into two parts in general, that is statement of profit or loss, statement of financial position. This would say about the profitability. Since he is the entrepreneur, he will just ask the manager, the finance manager or finance director, anything you can say, about the profitability of the company. And that can be known only from the statement of profit or loss. Then he would ask, what is the actual position of the company? Actual position of the business. Now what is this? Actual position of the business can only be known with or from the balance sheet or statement of financial position, since the name itself is statement of financial position. So what is this all about? See, when he started the business, he bought plant and machinery. So he bought it for 10 lakhs. So he asks, so he would see the summary. What is the value of this plant and machinery as on today? So that less depreciation, suppose 10%, 1 lakh is gone, 9 lakhs. Then he started business with some capital. That is suppose some 50 lakh rupees. And then he also wants to maintain some profits, like he wants to retain some profits every year. For that he has a retained earnings account, and he also took some 20 lakhs loan, okay, from the bank, because to run the business, debt and equity both are required. Am I right? Yes or no? Yes. Hello. Yeah, yes, yes. Yeah, at times I'm not saying that it is compulsion that the company has to take a loan. In general, what we see, companies, they do business with their own share capital, that is by selling the shares to public and giving them ownership in the company, and also they raise their finances in form of debt. That means by issuing bonds to public or taking loan from the bank. Let us keep it very simple. Okay, then definitely this capital, whatever the company has got, in the form of cash. So entry for starting the business is nothing but cash to capital. So today what I will do is, to some of these like Saima and Safwan, I will send you a video of accounting equation. Please go through that video. O- Fine. Okay, Yeah, okay, sir. so that accounting equation video would tell you how each and every account is getting affected, uh, like uh, like what are the changes the accounts are undergoing. Okay, see what happens when I raise capital for my business. I get cash physically 50 lakhs, and that cash I'm getting in the form of capital, correct? So in my cash account I have 50 lakhs. So in this way, I am seeing at the end of the year what are the values of my total assets and total liabilities. Suppose it is like the total assets are completely the total assets are 1 crore, for example,
Chalo, okay, 70 lakhs for example, and this is 70 lakhs. This is what is my position. Okay, that means I have assets of 70 lakhs and equivalent liabilities also I have of 70 lakhs. That means my business, see, liabilities is okay. It is not necessary that I should repay the liabilities today itself. These are long-term loans which I need to repay in 20 years, 30 years, whatsoever. And this is the share capital. This is the people's money in the business. I need not repay them. I just give them the share from profits or dividends every year. So in totality, this is what matters for me. This is what is the thing which I should worry about. This is the people's money. With this money of 50 lakhs, we bought plant and machinery, we bought furniture, we bought some more assets, we invested some money, for example. So, and every year we'll be earning profits. Profit would go into this account, and that profit we will not keep like that. We will reinvest in the market. Okay, we will create some investments. So this 70 lakhs is today what we have on December 31st. Do you think that 70 lakhs will be the same next year? No. Next year, things can change. How the things can change? Plant and machinery can decrease further because of depreciation. Hopefully, maybe I may purchase more 5 lakh rupees worth of plant. Maybe. So now 9 lakhs is the value as on today. Next year it will become 8 lakhs. How it will become 8 lakhs? Because again 1 lakh ka depreciation for next year, and then I purchased more plant and machinery of 5 lakhs that I'll add. So whatever changes are going on every year, those we will incorporate in our statement of financial position or balance sheet. Okay. So now cash. Do you think the cash would be same? No. We started the company. We will do the production. We will do the production and sell the goods to people. We will generate revenues, and revenue will go to which account? Cash account. So my cash account will also grow, and in fact I have to pay expenses to my employees. I have to pay salaries to my employees. I have to pay rent of my premises. So I would also definitely incur some expenses. Am I right? So those will be again subtracted from cash account. So these all changes every year happen, and after undergoing all those changes, the final figures are put in the balance sheet. Okay, to know the actual position of the business. So basically this balance sheet values should grow every year. That is considered good for the company. Why? Because company's value is growing every year. Correct? So this is what is expected. Now for entrepreneur, what would be satisfactory is the profitability, and he also would like to know the actual position of business every year. He would like to know whether company's valuation, its assets value, its like reserves, whatever the profits it is putting into reserves every year, that is growing, and they are investing lot of money, they are purchasing. So this company, so let us take an example. I am speaking about this entrepreneur. Fine. So this entrepreneur started the business on Jan 1st, 2020, and he is so profitable that in the year of 2022 he purchased some company for $1 million. So that would add up to his balance sheet. That would add up to his balance sheet in what way? Investments. He invested some money in gold, and he has $10 million invested in gold. So all this is also an important thing for the business. Whether the company's asset values are growing or not, whether the company's actual position every year is more when compared to previous year or not, every year company's value is growing or not, that is what he is concerned about. And if it's growing, he is happy. Okay. Huh? Now let's move forward. So since you have understood the importance of balance sheet for an entrepreneur, now it is very essential for you to know the contents or the elements of the balance sheet. Okay. So let me tell you something here. So let me show you a format and let me explain you properly. See, this is the format of a balance sheet. Okay. I think you definitely know about the elements of the balance sheet.
So a balance sheet is divided into current assets, non-current assets, current liabilities, non-current liabilities. Okay, I will tell you something about equity afterwards. So this is a balance sheet, for example, statement of financial position, and this statement of financial position has assets. So previously we used to prepare balance sheet in T form. Okay, so left side was liability side and right side was asset side. And here we used to write all our current assets, fixed assets, or we can say non-current assets. Okay, this we used to write. Here we used to write the share capital, and then we used to write the long-term loans, or the long-term liabilities, whatever you can say, long-term liabilities or long-term loans, whatever you want, you can say. And here we used to write current liabilities, and we used to see the total. Fine. Now this was the older version of like preparing a balance sheet. The newer version is vertical format, which I am showing you here. This is the vertical format. Okay, so here you see everything is in one column itself, that is just one page, and you see the current assets, the non-current assets, the total of assets. You see the current liabilities, the non-current liabilities, equity, just in one line. Okay, so everything is given in this way, and here you have the total of liabilities. And then when you combine this total of liabilities with the shareholders equity, you get the total of the liabilities side of balance sheet. This, and you can see the asset side of balance sheet, both are equal. Okay, see, you can see the figures now. So let me tell you something about these current assets and fixed assets. These are the elements I would call current assets, fixed assets, liabilities, that is long-term liabilities, current liabilities, and share capital as elements of SOFP or balance sheet. Okay, now see, what are current assets? Current assets are those assets. First, let us discuss the definition of an asset. Okay, asset. What is an asset? An asset is a resource which is owned by the shareholders, controlled by the entity, and on which future probable economic benefits flow to the entity. So this is what is an asset. Asset is something, some resource which is owned by the shareholders. See, a company is of course formed by the entrepreneur, but when entrepreneur sells the holdings to people, what is the holdings? So entrepreneur wants to start a company, and he has a requirement of 50 lakhs. Okay, 10 lakhs he has put from his own pocket. 40 lakhs he can arrange from outside sources. Okay, so the outside sources he is looking for, and he gets an option that he can sell the ownership. This is like he has invested how much in this? 20%. 80% ownership in the company he can give to some people who want to invest, or who are investors who are looking for investments. So there are many people, public, who are looking for investments. Okay, or he can get some individual or some group of individuals who are ready to buy a 80% stake in the company. So he is very happy to sell those stakes to someone else. Okay,
but he will be one of the directors of the company and he will be running the company. He will be involved in the company totally because it is his vision. Those are just investors, am I right? It is his vision, he will be running the company, everything will be his. These people are just investors, and they, being the investors, are only entitled to get profits at the end of the year. They are not the ones who are going to interfere in the day-to-day operations or day-to-day activities of the business. In the same way, if you purchase the share of SBI Bank, you are a shareholder of SBI Bank. I can understand you have just got some proportion in SBI Bank. Okay, you have got some fraction of value of SBI Bank, but you are not the one who is going to influence anything in the SBI Bank. Okay, on day-to-day basis, whatever the policies on which the SBI Bank works, you're not going to give your suggestion or you're not going to involve yourself in the management process of SBI company. Okay, SBI Bank, that you should clearly understand. So he can sell this 80% stakes to public by selling some shares to them and taking money from them. This is the proof that these people have purchased stakes in the company. Okay, the share certificate is nothing but a proof that these people have invested in this company, and on exchange of that, the people have paid money to this company. Okay, so that is what the way it goes. सर Now, yes. ये इन्वेस्टर आप बोले ना सर, ही इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, ही इज जस्ट एन इन्वेस्टर बोल के। हाँ सर जब मतलब इन्हें इन्वेस्टर मतलब इसको इन रिटर्न इसको शेयर्स मिलते ना वो कंपनी के। हाँ, इन्वेस्टर पैसे क्यों दे रहा है, उसको शेयर हाँ होल्डिंग मिल रही है। हाँ, तो सर ये कह रहे हो सर इक्विटी जो भी है आर द रियल हाँ, ओनर ऑफ द कंपनी, बट व्हाई नॉट हियर सर? व्हाट? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, राइट? हाँ, तो वो भी बट तो व्हाई ओनर्स नॉट ही है ना। हियर? हाँ, ओनर्स ही है वो लोग। बट आप बोले कि इसमें ज्यादा जो है इसका विजन वगैरह जो है, जो एक्चुअल जो बिजनेस स्टार्ट करा उसका है बोल के बोले। भाई ये लोग थोड़ी ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये लोग तो सिर्फ नहीं कर इन्वेस्ट रहे कर हैं। रहे हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं। हाँ सर। ये लोग का विजन थोड़ी है कंपनी स्टार्ट करना या कंपनी ऐसा चलाना, ऐसा नहीं है। वो तो सर कुछ कंपनी का जो जो एंटरप्रेन्योर है वही सोचता है ना, विजन उसका होता है। अगर कोई डिसीजन लेना है तो ये लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ओके। रिलायंस कंपनी के शेयर्स क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि आपको अंबानी के ऊपर ट्रस्ट है कि अंबानी वो कंपनी को अच्छा चलाएगा, करेक्ट? यस सर। आप सिर्फ अपना प्रॉफिट्स एंजॉय करो बस। आपका आपका ओनरशिप कंपनी में है। ओके। ओनरशिप कैसे मिल रहा है आपको? आप कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, होल्डिंग्स यस खरीद रहे सर। हो, और यस कंपनी सर। में जो भी प्रॉफिट आएगा आपका जितना भी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, आप 10% के ओनर तो 10% आपको प्रॉफिट में से मिल जाएगा आपका। यस सर। आपको सिर्फ अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेके निकल जाना है, बस उतना ही है। ओके। ओके, तो ये हमारा एसेट के बारे में मैंने क्या बोला? एसेट इज नथिंग बट इट इज अ रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। तो कंपनी में जब आपसे पैसा लेता है 40 लाख, 10 लाख इसका, 40 लाख आपका, तो कंपनी को मिल गया 50 लाख। विद दिस हिल बाई प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, he'll buy some building whereby he can set up some office। ये सब वो आपके पैसे, अब ये सब वो इस कैपिटल से जो पैसा आया उससे ही खरीदेगा। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ये जब पैसा जिससे ये सब एसेट्स वो खरीद रहा है कंपनी में, कौन? कंपनी का जो एंटरप्रेन्योर है। तो ये सब एसेट्स किसके पैसे से खरीद रहे हैं? शेयर होल्डर के पैसे से खरीद रहे हैं, करेक्ट? क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर भी यस सर। कंपनी में शेयर होल्डर है 20%। तो ये जो पूरे पैसे उसने अरेंज किया है, इससे वो कंपनी के एसेट्स खरीदेगा। तो एसेट्स के ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स। तो इसीलिए मेरा डेफिनेशन को क्लियरली समझो। An asset is a resource which is owned by the shareholders, controlled by the entity। अब प्रॉब्लम ये है कि आप एसबीआई कंपनी में पैसा लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए। एसबीआई कंपनी एक ब्रांच ओपन करा सिकंदराबाद में, और वो ब्रांच उसका 10 करोड़ का है। वो पब्लिक से पैसे लेके सब करके ही वो लोग ये सब करते हैं। तो क्या आप जाके वहां पर क्लेम कर सकते हो क्या कि ये मेरा है? नहीं। नहीं। आप
ये बोल सकते हो कि मैं एसबीआई बैंक में शेयर होल्डर हूं, बट ये आपका नहीं होगा, ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि उसके बहुत सारे आपके जैसे जितने भी शेयर होल्डर सबके पैसे उन लोग लेते हैं, वो पूरे पैसों को पूल करते हैं, पूल करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर प्रॉफिट कमा के आपको आपका रिटर्न्स दे देते हैं, करेक्ट। तो इसीलिए यहां पर ये पॉइंट समझो, asset is a resource which is owned by the shareholders, controlled by the entity। ये एसबीआई बैंक जो ब्रांच खोल रहा है उसमें आप जाके नहीं बैठ सकते हैं, वो किसके कंट्रोल में रहेगा? एसबीआई का। आप रिलायंस कंपनी में पैसे लगाए, रिलायंस डिजिटल भी है, रिलायंस फ्रेश भी है, वहां जाके बोलते क्या भैया मेरे को सब्जी दे दो, मैं कंपनी का ओनर हूं। रिलायंस डिजिटल में भैया ये मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, कंपनी में मेरा थोड़ा ओनरशिप है, तो ये डिजिटल का ये जो आपका शोरूम है ये मेरा है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। आप सिर्फ कंपनी में कुछ हिस्से के ओनर हो, बाकी ये जो भी कुछ कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं डेफिनेटली आप उसको ओन करते हो, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल किसके हाथ में होता है? अंबानी। कंपनी के पास होता है, अंबानी के पास भी नहीं, कंपनी के पास, रिलायंस कंपनी। अंबानी के पास कंट्रोल क्यों होगा? वो तो सिर्फ 30% का ओनर है। ओके समझ में आ रहा है? ओके सर। अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में 30% का ओनर है, आप 70% के हो पब्लिक। तो आप बोलते हैं सर अंबानी एंटीला बना रहा, भाई वो उसको पैसे आ रहे हैं 30% ओनरशिप का, वो पैसा एंजॉय कर रहा है, उसका बल्क में ओनरशिप है रिलायंस कंपनी में, तो उसका अगर प्रॉफिट होगा उसका 30% इसको मिलेगा, वो कुछ भी करे, आपको आपका शेयर मिल जा रहा है। आप रिलायंस कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट कुछ करोड़ों में हुआ, आपका उसमें 0.01% ही है सिर्फ शेयर होल्डिंग, तो आपको उसके हिसाब से आपका शेयर मिल जाएगा प्रॉफिट का। Now, coming to the definition, asset is a resource which is owned by the shareholders, controlled by the entity। यानी shareholders owners तो हैं, लेकिन उन assets को control नहीं कर सकते, वो assets कंपनी के पास रहेंगे, कंट्रोल भी कंपनी करेगी, लेकिन जो भी बेनिफिट्स होगा उन एसेट्स के यूसेज से, यानी कंपनी जो भी उनको यूज करके प्रॉफिट कमाएगी, वो प्रॉफिट आपको देगी, क्योंकि वो प्रॉफिट किसको मिलेगा? एंटिटी को, और एंटिटी से किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ओके, सो ये एसेट का डेफिनेशन है। चलो एक छोटा एग्जांपल पूछता हूं, मेरे को उस एग्जांपल का आंसर दो। बाकी आप लोग में कोई भी एक्टिव नहीं दिख रहा मुझे। साइमा आपका माइक्रोफोन को आप अनम्यूट करो। ओके सर। या मुझे क्वेश्चन के कुछ आंसर्स देना है, प्लीज बी एक्टिव। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है आपसे, चैप्टर तो पढ़ लेंगे लेकिन पहले आप लोग को कुछ मतलब कॉन्फिडेंस रहना, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, क्या है इसका मतलब पढ़ने का क्या रीजन है। चलो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, सही पूछने में, हाँ ठीक है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। मिस्टर बी को एक प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है ना, उसको एक प्रॉपर्टी लीज पे चाहिए, वो खरीदना नहीं चाहता क्योंकि उतना पैसा उसके पास है नहीं, और लोन लेना ये सब उसको नहीं चाहिए, क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर मैं लोन लेके प्रॉपर्टी बाई भी कर लेता हूँ, मेरा बिजनेस लॉस में आ गया तो मेरा पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। सो व्हाई नॉट आई शुड टेक लीज फ्रॉम मिस्टर ए। सो मिस्टर ए इज द लेसर एंड मिस्टर बी इज द लेसी। ठीक है, लीज एग्रीमेंट है। अब ये प्रॉपर्टी जो है ये इसका ओनर मिस्टर ए है, ठीक है ना, लेकिन ये प्रॉपर्टी उसने लीज पर किसको दे दिया? मिस्टर बी। हाँ, तो मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी को मिस्टर बी अपने बैलेंस शीट में एसेट्स के जैसा बता सकता है? ये प्रॉपर्टी का ओनर मिस्टर ए है, ये प्रॉपर्टी को लीज पे मिस्टर बी ले रहा है, तो मेरा क्वेश्चन है आप लोग से कि क्या ये प्रॉपर्टी को मिस्टर बी बैलेंस शीट में बता सकता है क्या आपने? यस यस। कैसे? रीजन? बोलते हो ने उसको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने क्या बोला कि एसेट इज सम रिसोर्स व्हिच इज ओन्ड बाय द ओनर, ओनर ये है, बट कंट्रोल कौन करने वाला है इसको? अभी मिस्टर बी। एंटिटी।
एंड फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स किसको आएंगे? जीरो। मिस्टर पी। और उसमें से ये उसको क्या पे करेगा? उसका रेंट। दैट्स इट। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि इससे वो प्रॉपर्टी 20,000 के रेंट पे लेकर अपने सामान उसमें रख के कपड़े की दुकान खोलना चाहता है, 5 लाख रुपए का कपड़े का सामान बेचेगा वो लोगों को, यानी 5,000 की वो ट्रेडिंग करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो डेफिनेटली एंजॉय तो यही कर रहा है पूरे बेनिफिट्स। ठीक है ना? तो इसीलिए ये उसके लिए एसेट हो जाता है, लीज्ड एसेट, और उसकी लायबिलिटी भी है, उसको लीज रेंटल पे करना है, लीज लायबिलिटी, दोनों चीजें, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली क्रिएट हो गई। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो आपको पहला डेफिनेशन क्लियर हो गया। इसीलिए बोलते हैं कभी भी आप सब्जेक्ट को मगअप मत करो, और डेफिनेशन के हिसाब से अगर समझोगे तो आप कोई भी सिचुएशन में क्लियर हो जाएगा आपको। पॉइंट नंबर 2, अब ये एसेट के बारे में समझ गए। एसेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, या अपन बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स on which you expect future probable economic benefits within a year, यानी एक साल या एक साल के अंदर, और लेस देन अ ईयर। फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स आर दोज एसेट्स ऑन विच यू एक्सपेक्ट फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स बियॉन्ड ए ईयर। आप डेफिनेटली एक, आप ये जो फिक्स एसेट्स आपके पास हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, इनके ऊपर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक साल नहीं, उससे ज्यादा टाइम में भी आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स उससे आता रहेगा। करेक्ट और रॉन्ग? आएगा Yes, ना? sir. आप उसको हर साल यूज करोगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक यूज करोगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको आता जाएगा। दैट इज व्हाट। Yes, sir. चलो, एसेट्स के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम लायबिलिटी का डेफिनेशन, और लायबिलिटी में भी दोनों जो कैटेगरी ऑफ लायबिलिटीज है वो दोनों समझते हैं। फिर हम इन एसेट्स में जो जो भी हमारे चैप्टर में कवर है उन चीजों को देखते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, चलो मेरे को बताओ अब ये लायबिलिटी। ठीक है, चलो, तो लायबिलिटी भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, और पहले लायबिलिटी को जानने से पहले उसका डेफिनेशन समझ लो। लायबिलिटी, लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट्स फ्यूचर ऑब्लिगेशंस आर क्रिएटेड। यानी सपोज यहां पर मिस्टर ए है, मिस्टर ए हैज गॉन टू ए बैंक, ओके, और उसने बैंक को बोला कि आई वांट अ लोन ऑफ 10 lakhs, नॉट राइट नाउ, आफ्टर 3 months। तो 3 months अब हो गया, एंड अब आपको बैंक से लोन मिल गया, और ये लोन आपको नेक्स्ट 10 years में रीपे करना है। तो ये पास्ट में इवेंट क्या था, आपके और बैंक के बीच में एग्रीमेंट, उसके वजह से फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? यस। क्या क्रिएट हुआ फ्यूचर ऑब्लिगेशन? आप 3 months के बाद जब आपको लोन मिल गया, अब आपको उसको 10 years में रीपे करना है, तो ये आपके लिए ऑब्लिगेशन है कि नहीं है? यस, दैट्स अ लायबिलिटी। अब 1 year के अंदर अंदर अगर आप कोई भी लायबिलिटी आपका या ऑब्लिगेशन आपका है विच यू नीड टू रीपे विद इन 1 year और लेस देन 1 year, दैट्स अ करंट लायबिलिटी। अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन है, आपका ऑब्लिगेशन बियॉन्ड 1 year है, यानी आपको 10 या 20 years का, आपने सपोज एक हाउसिंग लोन लिया, 30 years का आपने टेन्योर ले लिया, दैट कम्स अंडर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ओके, चलो अब ये चारों चीजें आपके सामने क्लियर हैं। आई हैव कवर्ड व्हाट इज एसेट, आई हैव कवर्ड व्हाट इज लायबिलिटी, आई हैव कवर्ड दी थिंग्स इन देम। मैंने आपको करंट एसेट्स के बारे में बताया, करंट लायबिलिटीज के बारे में बताया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के बारे में बताया, फिक्स एसेट्स के बारे में बताया। ठीक है, अच्छा, अब आपको इसमें और भी कुछ चीजें समझना है कि करंट लायबिलिटी में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा और डिटेल में चले जाते हैं। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है आपका? बैंक ओवरड्राफ्ट। यहां पर मैं कुछ पॉइंट लिखता हूं, इसके बारे में मुझे आप एक्सप्लेन करो। ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या है? प्लीज टेल मी।
अपन काम करा लिए मगर उसको पैसे देना बाकी है। हाँ, मतलब अपन जो मतलब हम जो भी अकाउंट्स क्रिएट करते हैं वो हम एक्रोल अकाउंटिंग के बेसिस पे करते हैं। एक्रोल अकाउंटिंग का मतलब आप जो भी खर्चे हैं जब भी उसको इंकर करेंगे तब आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे। आप वेट नहीं करोगे फ्यूचर का कि फ्यूचर में मेरे को जब मैं पेमेंट करूंगा तभी उसको मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता है मिस्टर ए। मिस्टर ए का आप सैलरी आपका 10,000 पर मंथ है। एवरी मंथ आप उसको 10,000 पे करना है। आपको पता है कि मिस्टर ए आपके पास पूरे साल काम करेगा, 1,20,000 आपको उसको पे करना है, करेक्ट। अब मिस्टर ए हो सकता है सर चलो अक्टूबर तक आपकी कंपनी में आप उसको 1,00,000 पे कर चुके हो। अब कुछ काम से आप सिंगापुर चले गए, नवंबर दिसंबर का सैलरी मिस्टर ए को आप नहीं दिए। आप मिस्टर ए को उसका सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करे। बॉस मैं आपको जो बता रहा हूं प्लीज उसको ध्यान से समझो। 1,00,000 आप उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, यानी उसके अकाउंट में डाल दिए। 20,000 नवंबर दिसंबर का नहीं डाले और आप उसको वहां से फोन किए भाई मैं जनवरी फरवरी में आऊंगा तब आपके अकाउंट में डाल दूंगा। तो लेकिन कंपनी जो अकाउंट बनाती है उसमें वो 20,000 आउटस्टैंडिंग सैलरीज बोल के दिखाएगी। क्यों दिखाएगी ऐसा? क्यों मुझे देना दिखाएगी बाकी ऐसा? है। हेलो, हो गया ना ये। हाँ सर। क्योंकि मिस्टर ए के सर्विसेज आप ले रहे हो। जब आप किसी के सर्विस लेते हो तो आपको एक्सपेंडिचर इंकर हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। आप उसको पे नहीं किए वो सेकेंडरी मैटर है। पे करना नहीं करना वो हमारे अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से what is important is expenditure is recognized when it is incurred rather than paid। यानी पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। खर्चा अगर आपको इंकर हो गया तो आपको दिखा देना है। तो हमको जब मैं उसको फोन किया दिसंबर 31 को सिंगापुर से कि भैया ऐसा ऐसा है, मैं जनवरी 10 को आऊंगा, आपका पैसा आपके अकाउंट में डाल दूंगा, तो मैं थोड़ी बोलूंगा मेरे अकाउंटेंट को भैया ये 20,000 मत बताओ। मेरा अकाउंटेंट अपना अकाउंट्स पूरा बना रहा है क्लियरली, और हम जब इसकी सर्विसेज ले रहे हैं तो उसको पैसा देना ही है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 1,00,000 तो सैलरी बताते हैं, 20,000 आउटस्टैंडिंग बताते हैं, और ये 20,000 को बैलेंस शीट में लेके जाके लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरीज 20,000 लिख देते हैं। तो इससे क्या क्लैरिटी होता है कि वो जो सैलरी है हम एक्सपेंस के तौर पे दिखा दिया लेकिन उसको पेमेंट नहीं करे, इट्स आउटस्टैंडिंग। गॉट माय पॉइंट? एवरीवन ऑफ यू, यस और नो? यस सर। Yes. Yes, Saima, did you understand? Hello? Yes, sir. Yeah. तो ऐसे आपको कुछ कुछ एक्सपेंसेस रहेंगे। मैं अभी बता देता हूं क्योंकि आगे जाकर आपको वो थियरी में आएगा, तो मैं पहले ही पूरा क्लियर कर दे रहा हूं। चलो और भी एक दो एक्सपेंसेस हम देख लेते हैं। चलो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब देखो आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। अब ये आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है? देखो आप किसी कंपनी में जॉब, आप किसी के लिए कुछ, आपका बिजनेस है, आप क्या करते हो, किसी कंपनी के लिए कुछ गुड्स बेचते हो, एजेंसी है आपका, आपने वो कंपनी के लिए जो भी उसका गुड्स है वो बेच दिया, ठीक है ना। बेचा तो आपको एक लाइक 10,000 रुपीज का कमीशन, आपका जो कमीशन बनता है वो 10,000 का बनता है, ठीक है ना। आपको कमीशन आना है, आप वो बंदे को सारे पैसे दे दिए, तो 10,000 में से वो बंदा आपको, चलो मैं इसको बाहर लिख देता हूं, 10,000 का कमीशन आपको आना है, उसने आपको 7,000 का कमीशन आपके अकाउंट में डाल दिया, क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। हाँ, आपके अकाउंट में डाल दिया। उसने बोला भाई साहब अच्छा है, आप मेरे लिए अच्छा खासा सेल किए, मैं आपके अकाउंट में 7,000 डाल देता हूं। और वो बोलता है कि भैया ऐसा ऐसा है कि मैं बाहर हूं, अभी अपने होम टाउन पे नहीं हूं, मेरे पास अभी जो भी मेरे अकाउंट में या मेरे पास जो भी है कैश है वो मैं बैंक में आपके लिए ट्रांसफर कर दे रहा हूं। फिर मैं
एक 1 या 2 मंथ्स के बाद अपने होम टाउन जाऊंगा, तब मैं आपका पूरा पैसा आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो हमारे लिए इनकम कितना है बॉस? हमारी इनकम कितनी है कमीशन का? 10,000। अरे बोलो, कमीशन हमारा 10,000 है। कितना आया हमारे को कमीशन रिसीव? 7,000। अभी और आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना है मेरे को आने का? आउटस्टैंडिंग कमीशन 3,000। तो मैं पूरा कितना बताऊंगा? 10,000। यही तो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। सी, इनकम्स आर रिकॉग्नाइज्ड when they are earned rather than received। यानी आप जो भी इनकम आप बिजनेस में कमाते हो, उसको आप कमाते हो मतलब अर्न कर रहे हो। भाई मैंने उसका पूरा सामान बेच दिया, बेच के पूरा पैसा उसके अकाउंट में डाल दिया, और वो मैंने जो उसका सामान बेचा, 1 लाख का सामान बेचा, 1 लाख में मैंने, हमारा जो डील है उस पर 10% कमीशन मुझे मिलना है, और मेरा 10% कमीशन बनता है 10,000, और वो बंदा मुझे वो अकाउंट में डालना है, बट उसने 7,000 डाला, 3,000 स्टिल बाकी है। तो मैं क्या करूंगा भाई? मैंने तो अर्न कर लिया ना, क्योंकि मैंने तो पूरा गुड्स बेचा उसका। तो मैं अपने अकाउंट में 10,000 बताऊंगा, जिसमें 7,000 रिसीव्ड बताऊंगा, 3,000 स्टिल टू बी रिसीव्ड बताऊंगा, और यहां मेरा बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कमीशन रिसीव्ड या आउटस्टैंडिंग इनकम 3,000 बताऊंगा मेरे एसेट साइड में, क्योंकि ये मेरे को पैसा उससे आना है। तो इससे मेरा अकाउंट पूरा टैली होगा। कैसे टैली होगा? 7,000 आ गया, 3,000 आने का है, पूरा इनकम मेरा जो अर्नड है वो 10,000 है, और 3,000 मेरा आने का है, वो मैं मेरे बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कमीशन में बता रहा हूं। ओके, सो इस तरीके से आपका ये करंट एसेट क्रिएट हुआ, और प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको करंट लायबिलिटी के बारे में बताया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो 2 चीजें आपको क्लियर हो गई। अभी और आपके लिए और एक चीज बाकी है, उसको 2 चीजें और बाकी है, ध्यान से सुनना। और 2 एग्जांपल है। और ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि वो सब आपको आपके बुक में है। अगेन यू विल बी कंफ्यूज्ड, ये क्या है क्या है क्या है बोल के, यू विल बी स्टिल आस्किंग योरसेल्फ। चलो अभी और एक एग्जांपल हम जो करते हैं वो है अनअर्न्ड रेवेन्यू। ये हमारे बुक्स में जनरली अनअर्न्ड रेवेन्यू दिखता है, ये आपको ऐसा भी लिख के आएगा डिफर्ड इनकम, या आपको एक और आएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये तीनों भी एक ही चीज है। आउटस्टैंडिंग इनकम तो हम कर लिए, जो हमको आने का है। अनअर्न्ड रेवेन्यू मतलब, अब आप एग्जांपल समझो, ये मेरा एक टेनेंट है, टेनेंट का जो रेंट है 1 लाख हमने जो फिक्स किया, 10,000 पर मंथ, और वो बंदे से पूरा पैसा हमने एडवांस में ले लिया, पूरा मिला के 1,20,000 होता है। अब ये 1,20,000 हमने पूरा का पूरा एडवांस ले लिया इससे। हमने बोला भैया हमारे को साल भर का, अभी हम 2 इयर्स तक आपसे पूरा एडवांस लेंगे, क्योंकि आप कभी भी छोड़ के चले जाओगे, हमको भरोसा नहीं है। एंड ही इज रेडी, वो बोलता है ठीक है भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को आपके सिटी में ये जो आपका प्रेमाइस से अच्छा लगा, आई एम रेडी टू पे। अब ये मेरा इनकम स्टेटमेंट है, यहां पर मैं बाई रेंट रिसीव्ड 1,20,000 दिखा देता हूं। नहीं सॉरी, ठीक है छोड़ो, यहां छोड़ो, ठीक है ना, चलो ये छोड़ दो। मेरा जो इनकम है इसको रहने, ये जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ये आपके लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? मेरे को बोलो। एसेट है। सब लोग बोलना। लायबिलिटी। लायबिलिटी है। ये सहीमा क्या है ये? Services are not yet. हाँ, Services are not yet given, so it's a liability. या तो अभी इसमें क्या होता है कि ये 1,20,000 आपके लिए एक लायबिलिटी होता है,
ये आप लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में 1,20,000 लिख देते हो। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ यहां पर आप लिखोगे इनकम या अनअर्न रेवेन्यू, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक्चुअली में क्या हुआ, आप उस बंदे से Jan 1st को पैसे ले लिए, यू हैव टेकन द मनी ऑन Jan 1st, बट ही इज येट टू he has not yet occupied, वो 2-4 दिन में उस प्रेमाइस को ऑक्यूपाई करेगा। और आपका जो रेंटल है, आपने उससे पैसा पहले दिया, वो बंदा बेचारा रेंट पे रहा ही नहीं अभी तक, सर्विसेज मिले ही नहीं उसको। तो जब Jan 1st को आप रेंट को दिए, Jan 31st आएगा, तब आपके लिए 10,000 इनकम बनेगा। गॉट माय पॉइंट? देन यू विल बी अर्निंग, करेक्ट और रॉन्ग? दिस इज व्हाट, सी 1,20,000 इज रिसीव्ड बट नॉट येट अर्नड। अर्न कैसे करोगे भैया? आपने उसको सर्विस ही नहीं दिया, सर्विस दोगे तब तो अर्न करोगे। सो यू विल बी अर्निंग द 10,000 ऑन Jan 31st, फर्स्ट मंथ। तो यहां पर 10,000 आपका अर्निंग दिखाओगे और यहां पर से 10,000 माइनस कर दोगे। ऐसे करते करते क्या होगा, अच्छा अब आपके दिमाग में आएगा सर ये लायबिलिटी, अरे भाई अगर वो बंदा 7 मंथ्स के बाद चले जाता है, अगर वेकेट करके चले जाता है, तो हम उससे पूरा ईयर का रेंट थोड़ी लेंगे, 7 मंथ्स का लेंगे, बाकी 50 उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये हमेशा हमारे लिए ऑब्लिगेशन है। ओके, एक तो सर्विस नहीं दी है अभी तक, उसका भी ऑब्लिगेशन है, सर्विस ऑब्लिगेशन है। एक इफ ही वेकेट्स वी नीड टू पे बैक, सो इट इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। ओके, अब फरवरी का मंथ है, फरवरी में अगेन Feb 28 खत्म हो गया, अगेन 10,000 का इसमें डिडक्ट हो गया, बिकॉज आर लायबिलिटी टुवर्ड्स हिम हैज रिड्यूस्ड एंड वी हैव अर्नड इनकम ऑफ 10,000। ऐसे करते करते पूरा ईयर हो जाएगा, दिस लायबिलिटी विल बी माइनस, ये जीरो हो जाएगा एंड योर इनकम वुड बी 1,20,000। ओके, तो ये एक लायबिलिटी और आपने सीखा, एंड वन मोर प्रीपेड एक्सपेंसेस लास्ट, देन वी वुड मूव। भाई प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है? भाई प्रीपेड एक्सपेंस मतलब नेक्स्ट ईयर मैं मेरे जो लैंडलॉर्ड हैं उसके पास गया एंड आई टोल्ड हिम कि देखो भैया नेक्स्ट ईयर में हमारा थोड़ा विजिट्स यहाँ वहाँ ज़्यादा है, मैं यहाँ पर रहूँगा कि नहीं रहूँगा पता नहीं है, तो जेन्युइनली आई थॉट ऑफ गिविंग यू द रेंट इन एडवांस। मैं आपको मैं 6 मंथ्स का रेंट 60,000 एडवांस में दे देता हूँ। कितना एडवांस में दे रहा हूँ? 60, करेक्ट? यस सर। अब लैंडलॉर्ड के हिसाब से अब ये मेरे लिए क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने पहले ही पे कर दिया उसको। मेरा रेंट कितना था उसको? टू रेंट, मेरा रेंट उसको 1,20,000 था, करेक्ट और रॉन्ग? पूरे ईयर का एज पर 10 into 12, और मैंने उसको कितना पे कर दिया? 1,20,000, 60 पे कर दिया। अब मेरे को स्टिल कितना पे करना है उसको? और 60 पे करना है। 60 पे करना है, करेक्ट? 60 पे करना है ना भाई। उसको जो उसका जो रेंट है, तो ये अब उसके लिए एक्सपेंस है, मतलब उसको जो मुझसे कलेक्ट करना है वो 60 है और मेरा एक्सपेंस उसके लिए है 60। ओके, क्योंकि 1,20,000 पूरे साल का रेंट होता है, 60 मैंने पहले ही उसको अगले साल का, मैं ये अभी जो है ये पूरा अकाउंटिंग नेक्स्ट ईयर के बारे में बता रहा हूं, मैं नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया उसको, अभी पे कर दिया, ठीक है? और ये मेरे कैश अकाउंट में कुछ 1 लाख पड़ा था और ये 1 लाख में से 60 चले गया 60, ठीक है? अब कैश अकाउंट में बचा कितना? 40, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि ये जो मैं पहले ही उसको पे कर दिया, ठीक है ना, अब नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर क्या मैं उसको पे करना है? 6 मंथ्स का रेंट जो मैं पहले पे कर दिया उसको पे करना है क्या? नहीं सर, नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा? एवरी मंथ इसमें 10,000 डालता जाऊंगा, 10 फर्स्ट मंथ का, 10 सेकेंड मंथ का, 10 थर्ड मंथ का, ओके? और यहां पर मैं एसेट बताऊंगा प्रीपेड एक्सपेंस। क्यों बताऊंगा? क्योंकि ऑलरेडी पे कर चुका हूं और उसके बेनिफिट्स में अभी एंजॉय कर रहा हूं, ठीक है? 60, यस सर, दैट्स इट। तो ये मेरे कैश अकाउंट में मैं डालता जाऊंगा क्योंकि इतना पैसा निकला था, इतना पैसा फिर एड अप हो जाएगा और ये मेरा बेनिफिट है, मैंने एंजॉय कर लिया।
6 मंथ्स का बेनिफिट एंजॉय कर रहा हूं, तो दैट्स अ एसेट फॉर मी। तो ये चीजों का मैं चारों का आपको सिनॉप्सिस लिख देता हूं। आपका जब बैलेंस शीट बनाओगे तो दिस विल, सपोज मैं टी शेप में बता रहा हूं, टी शेप में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को बेसिक्स टी शेप से थोड़ा ठीक समझ में आता है, लायबिलिटी एसेट। तो यहां पर माई outstanding income is a asset, it's a current asset, and my prepaid expense is also a current asset, and my outstanding expense is a current liability, and my unearned revenue or income received in advance is my, or deferred income is my current liability। तो ये चारों जो liabilities आपकी क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ accrual account concept। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना। लेट्स मूव ऑन। सर ये कैश फ्लो का पूरा इंट्रोडक्शन इसको फिनिश करने दो बॉस, मैं अभी इसको मैं कर तो लूं पहले इसको। मैं ये चैप्टर में थोड़ा कंटेंट तो चले जाऊं, कैश फ्लो का टेंशन मतलब मैं फिर कॉल बैक करके पूछ लूंगा। नाउ सी, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, एसेट के बारे में देखा, लायबिलिटी के बारे में देखा, ठीक है, ये मेरा बैलेंस शीट है। अभी भी कुछ बाकी है जो आपको नहीं पता है, वो है आपका इक्विटी। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, ये टोटल एसेट्स मेरे 10 लाख के हैं और मेरे जो लायबिलिटीज हैं वो पूरे, मैं ये पूरा पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है मेरा, इसमें से मैं इतना पोर्शन निकाल दूं तो मेरे को क्या बचेगा, इक्विटी, करेक्ट। तो ये मेरे 10 लाख है, ये मेरे 6 लाख हैं। तो 10 में से अगर मैं 6 निकालता हूं तो 4 क्या हो जाता है, इक्विटी। इक्विटी इज नथिंग बट टोटल ऑफ एसेट्स माइनस liabilities is equity. This is also accounting equation. वैसे आपको तो पता ही है इक्विटी क्या है। इक्विटी मतलब कुछ नहीं है, आप जो कैपिटल रेस करते हो वही इक्विटी है, बट इक्विटी को फॉर्मूला वाइज समझना है तो दिस इज वन ऑफ द वेज। ठीक है, यानी अगर आपके पूरे एसेट्स में से मैं लायबिलिटी माइनस कर दूं तो डेफिनेटली, अच्छा ठीक है, चलो मैं एक छोटा एग्जांपल से दिखा। आपका जो फ्लैट है 50 लाख में परचेस करना है, ठीक है ना, आप इसके लिए 10 लाख लोन, 10 लाख आप इसके लिए डाउन पेमेंट करें, दैट इज 20%। तो ये मैं क्या बोल सकता हूं, इक्विटी बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, हेलो, यस सर, मैं इसको इक्विटी बोल सकता हूं ना। हाँ 40 लाख का आपने लोन लिया, डेट, ठीक है, तो आपका इक्विटी है 10 लाख, आपका डेट है 40 लाख। तो अब देखो आपका एसेट कितना है, 50 लाख। तो 50 लाख के एसेट में से अगर मैं 40 लाख का डेट हटा दूं तो 10 लाख का क्या बचता है, इक्विटी। इक्विटी, दैट्स इट। तो इतना आपका इक्विटी है, ये आपका पैसा है, आपने लगाया, इतना आपने बैंक से लिया, इतना आपका एसेट का वैल्यू है। कभी एक बात याद रखो, हम इक्विटी को नेट एसेट्स भी बोलते हैं। नेट एसेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विटी। कब, नेट एसेट कैसा, 50 लाख आपका फ्लैट था, 50 लाख में से 40 लाख आपने लायबिलिटी निकाल दिया, तो आपका उस एसेट में आपका वैल्यू कितना है, आपका खुद का उसमें शेयर कितने का है, 10 लाख। आप जब एक कार खरीदते हो 10 लाख में, 2 लाख का डाउन पेमेंट करते हो, 8 लाख बैंक से लोन लेते हो, कोई पूछता है कि आपकी नेट एसेट वैल्यू क्या है, नेट एसेट वैल्यू इज नथिंग बट आपका कार का वैल्यू माइनस आपका जो लायबिलिटी है। तो आपका जो उसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, ओनरशिप आपकी नेट एसेट कितने की है उसमें, 2 लाख। दैट्स इट। ये सब समझना है, ये सब पॉइंट्स को, ठीक है। चलो पॉइंट्स खत्म हो गया, लायबिलिटीज आर डन, इक्विटी इज डन। अभी मैं आपको बताऊंगा इक्विटी में क्या क्या आता है, बट अभी थोड़ा ध्यान से, अभी जितना मतलब उतना समझो, ठीक है। बैलेंस शीट के बारे में समझ में आ गया आपको। चलो अब जैसे कुछ पॉइंट्स देखो क्या क्या है। See, the balance sheet provides useful information regarding a company's financial position, correct, to both investors and lenders. See, आप बैलेंस शीट को देखते हो तो आप ओनर हो कंपनी के, ठीक है, तो आपको तो अपने बैलेंस शीट में ये मालूम होना जरूरी है कि आपका एसेट कितना है और आपका लायबिलिटी कितना है कंपनी के अंदर में। एज ए ओनर यू वांट टू नो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस।
as a lender, someone would want to know what is the company's liability. कंपनी हमसे लोन लिया, हमको तो देना है, कंपनी क्या और भी एक्स्ट्रा लोन लिया क्या, वो भी कंपनी चुकाना है. तो if companies loans are increasing, debt are increasing, that is a dangerous sign for these people. So these people would also want to know the actual position of business. Okay, and analysts should be careful not to view equity reported on balance sheet as either market or intrinsic value of company's net assets because of the following reasons. देखो, कभी भी बैलेंस शीट में इक्विटी को देखना एक तरीके से थोड़ा सा एक ट्रिकी सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि आपके कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है वो मार्केट डिसाइड करता है, आप नहीं. आप एक कंपनी स्टार्ट किए, आपके कंपनी का शेयर वैल्यू आप कैलकुलेट किए $100 से स्टार्ट किए, आज वो शेयर का लोग $1000 देने को रेडी हैं, बट एक्चुअली में आपकी कंपनी की जब वैल्यूएशन करें तो वो $1000 नहीं बताता है शेयर का वैल्यू, वो पब्लिक आपको एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी है. सो दैट्स द रीजन व्हाई इक्विटी को हम लोग नहीं कंसिडर करना, हम लोग कंपनी में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनको देख के चलना है. अब यहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपका जो आगे के चैप्टर्स हैं उनको आपको समझना है. ठीक है, अब देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं. आपका ये जो एसेट है, सपोज प्लांट एंड मशीनरी, ये आपका बैलेंस शीट में आप 1 लाख में लिख रहे हो. ठीक है, मेरे को ये बताओ कि ये प्लांट एंड मशीनरी को मैं कैसे मेजर करना. सो देयर आर 2 वेज टू मेजर. सी, कभी भी कोई भी आप जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो, मैं यहाँ पर 1 नोट में लिखता हूँ, नीट रहेगा. See, if you study accounting standards, so every accounting standard, whatever you're going to study, stands on 3 pillars. First, कोई भी आप बैलेंस शीट बनाते हो तो उसमें जो भी एलिमेंट्स आप लिखते हो या बताते हो, जैसे अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बोलूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज नथिंग बट प्लांट एंड मशीनरी, तो इससे रिलेटेड 3 things related to property plant and equipment you should consider. That is what the accounting standard tells you to do. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बोलता है कि आप कोई भी बैलेंस शीट में कोई भी एलिमेंट्स आप दिखाते हो तो उससे रिलेटेड 3 थिंग्स आपको माइंड में रखना है, या 3 इंपॉर्टेंट like pillars or 3 important aspects you need to consider. So first one is the recognition criteria. Second is the measurement basis. Third is the disclosure requirements. आप कभी भी कोई एसेट को अगर बैलेंस शीट में दिखा रहे हो तो वो दिखाने का रीजन ये है कि वो उस पर्टिकुलर एसेट के डेफिनेशन से मैच करना चाहिए. सो यू वुड रिकॉग्नाइज, अगर मैं आपको बोलूं बिल्डिंग,
आपको बोलूंगा कि ये बिल्डिंग को आप कहां लिखना, एसेट में लिखना या लायबिलिटी में लिखना, तो आप बोलोगे एसेट में। मैं पूछूंगा क्यों, आप बोलोगे मेरे टीचर बोली। बट वो मैटर नहीं है यहां पर, टीचर ने कैसे बताया आपको कि बिल्डिंग एसेट में लिखना है? बिकॉज बिल्डिंग सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ एन एसेट। अगर ये एसेट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है तो डेफिनेटली इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए एसेट। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में पॉइंट नंबर 1 इज whatever you are recognizing as an asset or a liability, or in fact next chapter जो आप पढ़ोगे उसमें either income or expense should definitely satisfy the definition। अगर वो एसेट के डेफिनेशन से सेटिस्फाई कर रहा है तो एसेट साइड लिख दो, लायबिलिटी से कर रहा है तो लायबिलिटी में लिख दो, इनकम तो इनकम, एक्सपेंस तो एक्सपेंस। पॉइंट नंबर 2, ये बिल्डिंग को आप मेजर कैसे करोगे? मेजर करने का मतलब आपके दिमाग में अब आ रहा है कि अरे मेजरमेंट क्या है भाई? ये बिल्डिंग को हम कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, हम परचेज भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट करेंगे तो रॉ मटेरियल, ठीक है, और इसके साथ साथ वर्क इन प्रोग्रेस, और उसके साथ साथ फिनिश्ड, जो भी आपका बिल्डिंग बन जाएगा तो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस में फिर से आप जो भी रॉ मटेरियल आप लेके आ रहे हो उसको प्रोसेस करोगे, यहां पर आपको ओवरहेड्स भी आएगा। Overheads are nothing but the expenses, that is indirect expenses, okay? तो ये सबको क्लब करके आपको बिल्डिंग का एक कॉस्ट आएगा, ठीक है ना? तो वो कॉस्ट पे आप चाहो तो बिल्डिंग को अपने बैलेंस शीट में लिख सकते हो। मेजरमेंट बेसिस का मतलब वो बिल्डिंग की वैल्यू आप बैलेंस शीट में क्या बता रहे हो, वो बिल्डिंग का आप कितना प्राइस बैलेंस शीट में लिख रहे हो, वो बिल्डिंग का क्या कॉस्ट आप दिखा रहे हो, ये तीनों पॉइंट एक ही है। तो या तो आप कंस्ट्रक्शन करके उसका कॉस्ट मालूम कर सकते हो, या किसी से परचेस करोगे तो कॉस्ट मालूम हो सकता है, ठीक है? तो इन दोनों वे से आप मालूम कर सकते हो, ठीक है ना? या तो आप उस बिल्डिंग को किसी को बेचो तो वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको सपोज 1 लाख दे रहा है, तो उसमें से आपका खर्चा वगैरह कितना पड़ा, 20,000 एजेंट को आपने कमीशन दिया, तो आपको बिल्डिंग कितने की पड़ी, 80,000। तो आप इस वे में भी दिखा सकते हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये सब आप ये मत सोचो कि ये जब पॉइंट है आउट ऑफ द बॉक्स है, ये पूरा रिपोर्टिंग में आपको पढ़ना है। व्हेन आई विल बी टीचिंग यू द चैप्टर कॉल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आई विल कम अक्रॉस ऑल दिस, एंड दिस चैप्टर व्हाट यू आर रीडिंग इज काइंड ऑफ अ बेसिक्स फॉर दैट। ये बेसिक्स बिल्डिंग एक्सरसाइज है, आगे जाकर जो बड़े बड़े चैप्टर आएंगे उन सबका बेसिक्स अभी कवर हो रहा है। तो ये स्ट्रांग नहीं है बोल तो दूसरे कोई चैप्टर आपके स्ट्रांग नहीं होते। सो अगेन आई एम सेइंग, जो भी बिल्डिंग है उसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या है, वो एसेट है। एसेट क्यों? क्योंकि डेफिनेशन को मैच कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, उसको बैलेंस शीट में आप कौन सा वैल्यू पे दिखाओगे? तो वैल्यू पे दिखाना मतलब मैं 1 लाख रुपए लिख रहा हूं बैलेंस शीट में, ये 1 लाख रुपए, कोई क्वेश्चन पूछेगा ये 1 लाख रुपए क्या है? बिल्डिंग का कॉस्ट है। हाँ, मैं बोलूंगा हाँ, कैसे मालूम चला आपको? भाई मैंने कंस्ट्रक्ट किया तो मेरे को इतने का खर्चा पूरा मैंने कैलकुलेट करके टोटल किया तो 1 लाख पड़ा। दूसरा पूछेगा कोई कि ये 1 लाख कैसे लिखे, तो पॉइंट नंबर 1 कंस्ट्रक्शन से बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अरे भैया मैं ये उससे परचेस कर लिया तो मेरे को वो 1 लाख में बेचा। पॉइंट नंबर 3 कैसे निकाल सकते हैं, अरे इसको मैं मार्केट में बेचने गया ना, तो मैं जब लोगों को बोला भैया 1 लाख, तो वो लोग मुझे बोले हाँ ठीक है मैं देता हूं, लेकिन मेरे को बेचने के लिए मैं एजेंट को कमीशन भी दिया, तो सब मिला के मुझे हाथ में 80,000 आया, तो हम उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो कभी भी याद रखो, जो भी बिल्डिंग वगैरह या एसेट्स आप बैलेंस शीट में दिखाते हो, कोई वैल्यू पे दिखाते हो, तो वैल्यू कैसा आता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो मेजरमेंट बेसिस, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कॉस्ट। मैं अगर बोलूं, अब उसमें भी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना? पहले तो आपको कॉस्ट का मीनिंग समझ में आ गया, अब इसमें 2 पॉइंट समझाता हूं, वो भी आप ध्यान से समझो। पॉइंट नंबर 1 हिस्टोरिकल कॉस्ट, पॉइंट नंबर 2 रीवैल्यूएशन। चलो मैं रीवैल्यूड वैल्यू लिख सकता हूं। अब इसका क्या मतलब है, आपके दिमाग में डाउट आएगा, ये क्या है ये क्या है? भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नथिंग बट जितने में आपने खरीदा, यानी आइदर आप कंस्ट्रक्ट किए तो आपको जो वैल्यू मिला, या आप बाई किए तो जो वैल्यू मिला, या आप बेचने गए और आपको जो मिल रहा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये तीनों भी वैल्यूज पे आप बिल्डिंग को Jan 1 पे खरीद लिए, Jan 1 पे। तो अब सपोज आप सपोज बाई किए 1 लाख में,
तो वो आप बैलेंस शीट में 1 लाख में दिखा रहे हो। अब एवरी ईयर ये एसेट को आप डिप्रिशिएट करते रहते हो और हर साल आपको इसका क्लोजिंग वैल्यू मिलता है। फिर नेक्स्ट ईयर में वो क्लोजिंग को फिर आप अपने नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में ओपनिंग बता के फिर उसमें से डिप्रिसिएशन निकालते हो, वो चेंज चलता रहता है। नाउ रिवैल्यूड वैल्यू मतलब भाई ऐसा सोचो कि आप अगर अपने एसेट को सिर्फ यही वैल्यू पे बताते रहोगे, जैसे एक छोटा एग्जांपल, मैं बरकतपुरा में, यानी जो बरकतपुरा एरिया है उधर मैं अभी 20 ईयर्स से हूं, ठीक है। तो मैं अभी क्या है, मेरे दिमाग में आया कि मैं एक अपार्टमेंट को परचेस कर लूं। भाई क्यों नहीं, परचेस करना चाहिए, रेंट लग रहा है, ये सब लग रहा है, हर इंसान सोचता है कि आई शुड बाय माय ओन हाउस। तो मैं अपार्टमेंट के लिए जब एक बिल्डिंग में गया, उसको पूछा भैया कितना आपका कॉस्ट क्या है, कितने में बेचोगे मुझे फ्लैट, ही इज इंटरेस्टेड टू सेल। वो बोलता है 50 लाख। भाई मेरे दिमाग में ये आया, ये बिल्डिंग, मैंने पूछा भैया मेरे को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दो ना, मैं एक बार आपका प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ। तो मुझे टाइटल डीड दिया, उसमें प्रॉपर्टी सिर्फ 3 लाख में परचेस किया उसने। जब उसने 20 ईयर्स पहले ये बिल्डिंग को परचेस किया 3 लाख में किया। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर 3 लाख में ये परचेस करा और डिप्रिसिएशन एवरी ईयर निकाले तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 0 है एक्चुअली में, बट वो मुझे कितना कोट कर रहा है। अरे बोलो, आप लोग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो क्या सब्जेक्ट में? हो है सर। मैं अच्छे अच्छे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई नहीं देता ये सब। बोलो कितना बोल रहा है? फॉलोइंग 50 लाख से। साइमा आप फॉलो कर रहे नहीं कर रहे? कर रहे ना? हेलो हेलो, ओके 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 ओके। तो आप मेरे को बोलो, ये जो मैं फ्लैट लेने के लिए गया तो 3 लाख का कॉस्ट है, उसको 3 लाख में पड़ा। उसका कॉस्ट कितना था जब वो खरीदा? 3 लाख। मैं क्या बताया आपको? मैं बाई बताया, ठीक है ना। 3 लाख में खरीदा और बंदा जब डिप्रिसिएशन करे तो 20 इयर्स में 0 हो जाना वैल्यू, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से भी देखे तो। लेकिन 50 लाख बोल रहा है। तो इससे हमारे दिमाग में क्या डाउट आता है कि ये जो बंदा जो 3 लाख रुपए प्रॉपर्टी की वैल्यू जिसकी थी, जिसका फ्लैट है, उसको 3 लाख में पड़ा, वो मुझे 50 में बेच रहा है। अब मैं उसको अगर वो बंदा इसको एवरी ईयर इसको 3 लाख ही बताए तो ये क्या रियलिस्टिक? डिस्टरबेंस हो रहा सर, ये बहुत आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। अब आ रही है वॉइस? हेलो, आप सही अब आ रही है वॉइस? हाँ सर, परफेक्ट है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि ये 3 लाख ही अगर मैं हर साल बताऊं तो क्या ये रियलिस्टिक वैल्यू लगता है क्या आपको? नहीं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है उसको मैं 3 लाख बताए तो इट इज काइंड ऑफ अंडरस्टेटिंग, यानी मेरे जो एसेट की वैल्यू उसको मैं बहुत कम बता रहा हूं, वो रियलिस्टिक नहीं है। तो इसीलिए एक नया मॉडल आया, दैट इज रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या है? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये लोग क्या बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं भाई साहब, तुम जो एसेट तुम्हारे पास है, वो एसेट को तुम अगर वही ओल्ड वैल्यू पे बता रहे हो और मार्केट में आपको ज्यादा मिल रही है वैल्यू, तो आप ये सही नहीं कर रहे हो। आप अपने एसेट को जानबूझ के कम वैल्यू बता रहे हो। समझ में आ रहा है? जबकि उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप उसको रिवैल्यू कराओ, एक एक्सपर्ट को बुलाओ, एक इंजीनियर को बुलाओ, एक रिवैल्यूअर को बुलाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका एक टीम होता है, वो आके आपका वैल्यू रिवैल्यू करके बताएंगे आपको। तो रिवैल्यू किए तो 50 लाख आया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अपना जो ये एसेट है इसको रिवैल्यूड फिगर पे भी लिख सकते हैं बैलेंस शीट में। समझ में आ रहा है? यस सर। या प्लीज, मैं बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है आज मैं एफर्ट्स लगाऊंगा तो वो फ्यूचर में तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके चलो, तो ये आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए। पॉइंट नंबर 1 आपको क्या समझ में आया कि अगर मैं किसी चीज को बैलेंस शीट में लिखना तो सबसे पहले वो उसके डेफिनेशन से मैच करना। दूसरा, उसको अगर मैं बैलेंस शीट में कोई वैल्यू पे लिखना तो वो वैल्यू या तो कॉस्ट भी हो सकती है या तो मैं कितने में कंस्ट्रक्ट करा उसमें भी। ये सब हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ये पूरा
क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप उसको बाई करोगे या कंस्ट्रक्ट करोगे या नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी उसको बेचने के लिए गए हम लोग, तो हमको कितना देने को रेडी है लोग? भाई हमारे दिमाग में ऐसा आया कि चलो अपन प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू देखते हैं। एक्चुअल वैल्यू कैसे मालूम होगी? मार्केट में जो लोग पैसे देने वाले हैं उनसे मालूम होगी। हम क्या करें, 10 लोगों को पकड़े, भैया ये प्रॉपर्टी है, तुम इसका कितना देते? वो लोग बोल रहे कि भाई ऐसा ऐसा है, हम आपको 1,20,000 देते, कोई बोल रहा है 1,00,000 देते, कोई बोल रहा 70,000 रुपए देते। फाइनली एक बंदा बहुत सीरियस निकला, वो बोला 1,00,000 देता हूं भैया। तो हम क्या बोले, ठीक है 1,00,000 देते हो ना, ओके। और लेकिन उसको बेचने के लिए हमको कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन, एजेंट वेजेंट हायर करे तो 10,000 रुपए का खर्चा आ रहा फॉर एग्जाम्पल। तो अब 90 में हमारा एसेट हमारे को हाथ में इन कैश इन हैंड आ जाएगा, उसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कितना मिल रहा है, ठीक है। तो इन तरीकों से मुझे सिर्फ ये मालूम हुआ कि मेरा बिल्डिंग का कॉस्ट क्या है, मैं बैलेंस शीट में लिख दिया। लेकिन नेक्स्ट ईयर, अगले साल मैं इसका 90,000 बता रहा हूं, 10,000 डिप्रिसिएशन करके। उसके अगले साल मैं 10,000 डिप्रिसिएशन करके 80,000 बता रहा हूं। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरा जो स्टैंडर्ड है IFRS, वो मेरे को क्या बोलता है कि भाई साहब तुम चाहो तो एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भी दिखा सकते हो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दिखा लो। आप जो प्रोसेस से दिखा रहे हो हम उसको एग्री करते हैं, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन आप एक बात सोचो कि आपकी प्रॉपर्टी आप ऐसे बता रहे हो लेकिन मार्केट में उसका बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो आप जो कम बता रहे हो वो हमको अनरियलिस्टिक लगता है। तो व्हाई डोंट यू रिवैल्यू योर प्रॉपर्टी एंड शो अ रिवैल्यूड फिगर? ये भी आपको परमिशन IFRS ग्रांट करता है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिखता हूं कंक्लूजन के ऊपर, और आपको 2 स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं आप। यू आर डूइंग अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ US GAAP एंड IFRS। तो जब मेजरमेंट की बात आती है तो US GAAP बोलता है सिर्फ कॉस्ट पे बताओ भैया, हम ये रिवैल्यूएशन ये सब हम नहीं बिलीव करते, हम रिवैल्यूएशन मॉडल को नहीं बिलीव करते। तो वो बोलते हैं कि आप कॉस्ट मॉडल यानी यू ऑलवेज शो आउट हिस्टोरिकल कॉस्ट, यू ऑलवेज शो आउट हिस्टोरिकल कॉस्ट। जितने में खरीदे उतने में बताओ भाई साहब। हाँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर रही है कोई ना कोई रीजन से, ठीक है, मैं उस पर बाद में आऊंगा, अभी नहीं, अभी पूरा एक दिन में बोलूंगा तो कंफ्यूज। ये बोलते हैं कि आप जो मेजरमेंट है वो कॉस्ट मॉडल यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भी कर सकते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, जस्टिफाइड। बट हम बोलते हैं आपको, हम रिकमेंड कर रहे हैं कि क्यों ना आप उसका रियलिस्टिक वैल्यू बताओ। तो आप चाहे तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी दिखा सकते हो, यानी आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर ज्यादा हो रहा है मार्केट में तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो IFRS is more flexible. They are giving you two types of ways to measure your asset. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। और हमारे Sir. इंडिया में IFRS ही फॉलो होता रिगरसली, ओके। सर एक डाउट। हाँ पूछो। सर अगर उसको बेचना है समझो तो US GAAP पहले फिर उसको रिवैल्यू करके। हाँ वेरी गुड, एक अच्छी पॉइंट पूछे हो, एक अच्छा पॉइंट पूछे हो, उसका एक आंसर भी दे देता हूँ। आप स्टूडेंट के मन में डाउट आता सर ये क्या है, दोनों भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग बॉडीज है, ये सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट बोल रहा, रिवैल्यूएशन को नहीं मानता बोल रहा, ये बोल रहा रिवैल्यूएशन। भैया उसके पीछे रीजन ये है, US GAAP वाला क्या बोल रहा कि तुम मार्केट वैल्यू कुछ भी क्रिएट कर सकते, क्योंकि मार्केट में अगर कोई चीज आपके लिए कोई काम की नहीं है, वर्थलेस है, किसी के लिए वो काम की हो सकती है। 3 लाख रुपीस में कोई बरकतपुरा में फ्लैट खरीदा, 50 लाख कोट कर रहा है, तो एक मिस्टर ए है, वो बोलता ए कौन देता रे 50 लाख रुपए ये बरकतपुरा एरिया के लिए, मैं हाईटेक सिटी जाके वहां फ्लैट खरीद लूंगा। दूसरा मिस्टर बी बोलता ए बेकार है यार, कौन ट्रैवलिंग करता, मैं सिकंदराबाद में खरीद लेता। मिस्टर सी बोलता नहीं नहीं, मेरा दुकान बरकतपुरा में ही है, मेरे को तो ये बेस्ट है एंड आई एम रेडी टू पे व्हाटएवर यू वांट। समझ में आ रहा? हाँ सर। और ऐसे में आप कुछ भी क्रिएट भी कर सकते हो, आप कोई कस्टमर दे रहा बोल के क्रिएशन करके भी बता सकते हो, कौन देखने को आ रहा है, कौन पूछ रहा है। तो इसीलिए रिवैल्यूएशन मॉडल में बहुत ज्यादा स्कैम होने का चांसेस है, इसीलिए US GAAP डोंट कंसीडर रिवैल्यूएशन मॉडल। तो रिवैल्यू अपन कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपने ऊपर है। यस यस, वैसे तो हम लोग ऐसे किसी से भी रिवैल्यूएशन नहीं कराते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये लोग से करते हैं, लेकिन
आपको मालूम है ना, ये लोग भी सब हैंड इन ग्लोव है, कितना स्कैम हो रहा है मार्केट में, हर चीज चोरी होती रहती है, मतलब झूठ बोलना ये सब चलता ही रहता है। तो आज आप लोग क्या करो, जो बेसिक्स मैंने दिया उसको पूरा रीड करो, ठीक है। यस सर। और आपसे और कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, क्योंकि देखो ये चैप्टर में मैं आपको जो जो बता रहा हूँ, मैं आगे के भी बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर दिया हूँ, बट वो मैं आपको कल डिस्क्लोज करूंगा। जैसे मैं आपको करंट एसेट्स के बारे में बता दिया, ये डेफिनेशन क्लियर है। नॉन करंट एसेट्स बता दिया, करंट लायबिलिटीज बता दिया, नॉन करंट लायबिलिटीज बता दिया, ठीक है ना। यस सर। अब कल हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर को बहुत डीपली जाके स्टडी करेंगे। ओके फाइन। ओके सर। ओके ओके, सेम टाइम टुमारो 11:30। ओके, थैंक यू सर। Okay. थैंक यू। Yeah, Jen, just